السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وقال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا على فطرة الإسلام والا کلمۃ الاخلاص والا دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ملت ابینا ابراہیم حنیفا۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام پر کہ جن کی محنتوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے ہمارا موضوع تمسک بالکتاب و سنہ، اس کے مختلف حصے آپ نے سماعت فرمائے۔ اسی کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں کہ قرآن و سنت کے ساتھ تمسک ہونا چاہیے، اگرچہ اس میں ہر صاحب طریقہ قرآن و سنت کے تمسک کا اپنا دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت ہوئی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں دین بداری کے اسباب و محرکات اور علاج کہ نوجوان، خصوصاً آج کا نوجوان دین سے بیزار ہوتا جا رہا ہے۔ ہم پہلے اس بات پہ باقاعدہ محنت کرتے تھے کہ کوئی آدمی حنفی بن جائے، شافی بن جائے، مالکی بن جائے، حنبلی بن جائے، اہل حدیث، اہل سنہ، دیوبندی، بریلوی، اس طرح کی تقسیم میں باقاعدہ ہم نے محنت بھی کی اور اس کے نتائج بھی لیے۔ لیکن اس وقت حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، جعفری کے مسئلے سے بڑھ کر مسئلہ خصوصاً وہ طبقہ جو ہمارا لیڈ کلاس طبقہ ہے،
اور مڈل کلاس طبقہ، اس میں ایک بچے کا بنیادی مسلمان ہونا بھی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت اور بہت بڑی اللہ کی عنایت سمجھی جاتی ہے کہ بچہ مسلمان ہے۔ اتنا بڑا المیہ اور اس قدر بڑا ٹاسک ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ اب ہمارے وہ بچے جو ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے، مسلمانوں کے علاقے میں پیدا ہونے والے، مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا ہونے والے اور مسلمانوں کے اسکول کالجز یونیورسٹی میں پڑھنے والے، ان کے متعلق ایک معیاری مسلمان، معیاری دیندار اور معیاری مومن اور محسن مخلص ہونے کی بات ہوتی تو بہت اچھا تھا، لیکن جب ہمارے سامنے ایسے سوالات اور مسائل آتے ہیں کہ بچہ 15 سال کا ہے، بچہ 20 سال کا ہے، بچی 15-20 سال کی ہے، ماسٹر لیول کی تعلیمات میں ہے، لیکن وہ دین اسلام کے متعلق اور پھر تمام مذاہب کے متعلق شبہات کا شکار ہو چکی ہے، وہ پھر کرتے کرتے رہنما باہر کا ہونا چاہیے اور وہ کون سا ہونا چاہیے یا اندر کا رہنما ہونا چاہیے، اس مسئلے میں باقاعدہ تشکیک اور تحیر اور تحیل کا شکار ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر خدا انکار پر، دین بیداری پر تحریکیں چلی اور انہوں نے باقاعدہ دین سے بیدار اور دین کے انکار پر نہ صرف کافروں کو آمادہ کیا کہ اس کے اوپر تحریکیں چلائیں، بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی ان رویوں کو انہوں نے عام کیا کہ مسلمان باقاعدہ کچھ ایسے دل کو موہ لینے والے نعرے اور دل کے قریب ہو جانے والے خواہشات پر مبنی نعرے اور اس پر تحریکیں کھڑی کی، جس سے وہ مسلمان کو کافر تو نہ بنا سکی، لیکن مسلمان کے اندر کچھ ایسے سوالات، ایسی تشکیک، ایسے شبہات اور ایسے اعتراضات اور ایسے سوالات انہوں نے اٹھا دیے کہ جس سے مسلمان بڑا عجیب و غریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پورے دنیا اور پورے عالم اسلام کے جو مسلمان ہیں اور خصوصاً نوجوان، ان میں 3 قسم کے رویے اور 3 قسم کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک نوجوانوں کی وہ نسل ہے اور وہ طبقہ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی خاص مہربانی سے اور اس کی خاص رحمت سے باقاعدہ صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ ان کے عقائد کو، ان کے افکار و نظریات کو، ان کی عبادات، معاملات، اخلاقیات کو دیکھا جائے تو بسا اوقات بڑوں کو بھی رشک آتا ہے، بڑے بھی ان کے اوپر قربان جاتے ہیں کہ واقعتاً اس بچے نے اپنی جوانی کو، اس بچے نے اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر گامزن کیا ہے۔ وہ صوم و صلات کے بھی پابند ہوتے ہیں، نماز روزے زکوٰۃ کے بھی پابند ہوتے ہیں، اخلاقیات کی بھی اعلیٰ مثالیں رکھتے ہیں، معاملات میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور پھر انفرادی اجتماعی زندگی میں، تعلیمات کے میدان میں بھی وہ پیچھے نہیں ہوتے۔ ایسے مسلمان، ایسے نوجوان تمام دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ان نوجوانوں کو معاشرے کے اندر ایسے گھسا دیا جائے، ایسے پھیلا دیا جائے کہ ان کے عقائد و افکار، ان کی تعلیمات، ان کے اخلاق عالیہ سے باقاعدہ دوسرے نوجوان سیکھیں کہ مسئلہ جوانی کا نہیں ہے، مسئلہ ایج کا نہیں ہے، مسئلہ عمر کا نہیں ہے، مسئلہ تربیت کا ہے، خاص ماحول کا ہے، جس سے بچہ باقاعدہ سیکھتا ہے۔ آپ کا اگر بچہ بگڑا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں،
इनका अगर बच्चा सुधरा है तो उसका भी कोई असर है, उसके भी कुछ असबाब है। बिगड़ता बच्चा बजाते खुद नहीं है, सवालात, एतराज़ात, शुबहात बैठे बैठे अकेले बजाते खुद पैदा नहीं होते, उसे पैदा किया जाता है। एतराज़ात लाए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, और फिर उस इस्लाम के मुतल्लक मुसलमानों के अजीबो गरीब रवैये, जो इस्लाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीन नसीहा, दीन सारे का सारा सरापा खैर है, या यूं तर्जमा किया जाए कि दीन इस्लाम ही सरापा खैर है। इसके अलावा खैर आपको दीगर अदियानों में नहीं मिलेगी, बातिल अदियानों में नहीं मिलेगी। फरमाया दीन युस्रुल, दीन मुश्किल लम्हात और मुश्किल घड़ियों में भी और मुश्किल मौक़ों में भी और इसी तरह मसाइब मशाकिल में भी आसान है। दीन पे चलना कोई मुश्किल नहीं है। इसी के मुतल्लिक़ फरमाया कि दीन सिर्फ जज्बाती नहीं है, दीन हर तरह की तालीमात देता है, फितरत को भी अपील करता है। फरमाया कुल्लु मौलूदुन यूलदु अला फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, तौहीद पर पैदा होता है, अच्छाई पर पैदा होता है, मुस्बत चीज़ों पर पैदा होता है, एक अच्छी बुनियाद पर पैदा होता है। वो अलग बात है फा बाबा हुई वहविदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी, कि उनके आबाव अजदाद, उनके दोस्त अहबाब, उनका तालीमी सिस्टम उनको अपने दीन से बेदार करता है, बसा औकात बेदीन बनाता है, बसा औकात निज़ाम लादीन बनाता है, लादीन में बसा औकात यहूदियत की तरफ रुझान होता है, बसा औकात ईसाइयत की तरफ, बसा औकात आतिश परस्त लोगों की तरफ, और आखिरकार एक वक्त आता है कि मजहब पे रहने वाला मजहबी भी मजहब से किनारा कश होके, आगे इसी हदीस के लफ्ज हैं बहीमा, कि पहले मजहब बेदारी का रवैया होता है, फिर मजहब बेदारी से इंसान बेदारी का भी रवैया आ जाता है, उसे जानवर जैसा बना देते हैं। हदीस में आता है अस्बाहना अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा हर सुबह ही, ये तो हदीस थी कि हर बच्चे की पैदाइश, हर बच्चे का पहला दिन, उसके आगाज का दिन फितरत का दिन है। यहां इस हदीस में अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि वलादत का दिन ही फितरत का दिन नहीं है, वलादत का दिन ही मुस्बत दिन नहीं है, वलादत का दिन ही पॉजिटिव और अच्छा दीनी नहीं है, बल्कि हर सुबह ही फितरत पर है। अस्बाहना अला फितरतिल इस्लाम, हम में से हर आदमी फितरत इस्लाम पर सुबह करता है, ये दुआ पढ़ते हैं वाला कालिमातिल इखलास, कलमा इखलास पर, अच्छे और सच्चे और सुच्चे कलमे पर हम सुबह करते हैं। और दीनी नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुआ बहुत अहम है, बखुसूसन उन बच्चों के लिए जो दीन बेदारी के रवैये में आ गए हैं, जो दीन से इनहराफ के रवैये में आ गए हैं, दीन में तशकीक के रवैये पे आ गए हैं। अगरचे ये मौजू ऐसा है कि जो आम फाहम बसौकात नहीं रहता, लेकिन बरकैफ हमारा मसला यह है कि मिंबर महराब में ऐसे मसाइल और ऐसे मौजूआत भी होने चाहिए कि हम जिन इलाकों में बैठे हैं उन इलाकों के तकाजे के तहत ऐसे मौजूआत, जो मौजूआत लोगों की अब बुनियादी ग़िज़ा बन चुके हैं, बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं, इनके बगैर सिर्फ आप फजीलत के, अहमियत के, शान और शौकत के मसाइल बयान करेंगे, वो भी चीज़ें आती हैं, बस औकात वो मौलवी से ज़्यादा मिस्टर को ज़्यादा आती हैं, मौलवी से ज़्यादा स्कॉलर को ज़्यादा आती हैं, और इसी तरह इमाम से ज़्यादा मुक्तदी को और मुफ्ती से ज़्यादा मुक्तदी और रियाया को ज़्यादा मसाइल आते हैं, वो आपको बस औकात रोकते रोकते भी नजर आते हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ अस्बाहना अला फितरतिल इस्लाम, दीन इस्लाम पर सुबह करता है। ये फितरती दीन, ये नकली और वही पर मबनी दीन, ये खालिक का दीन, ये मुआशरे का दीन, ये दुनिया का दीन, ये हर फर्द और हर इंसान का दीन, इससे भला बेदारी मुमकिन कैसे है?
इससे इनहराफ का रवैया पैदा कैसे हो सकता है? ये तो अंदर से अपील करता है। बाहर का मौलवी ना भी बोले, बाहर से वाज ना भी आए, बाहर से दरस और सबक ना भी आए, बाहर से तालीम और इल्म ना भी आए, बाहर से तरबियत का माहौल ना भी पैदा हो, खुद उसके अंदर अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम लगाया है जो सिस्टम उसको मजबूर करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बगैर बनाने वाले के बन गई है, ऐसा नहीं है ये बगैर संभालने वाले के संभली हुई है दुनिया, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया बगैर चलाने वाले के चल रही है। उसको अंदर से आवाज आती है। डॉक्टर अपनी लेबॉर्ट्री में जाता है, साइंसदान अपनी प्रैक्टिकल म्यूजियम में जाता है, तो वहां उसको अंदर से आवाज आती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि कायनात बगैर बनाने वाले के और बगैर चलाने और वाले और बगैर संभालने वाले के संभल रही है। यह बाकायदा एक निजाम है। अगरचे ये मौजूद बात नहीं है, बात यह है कि दीन बेदारी का रवैया जो पैदा होता जा रहा है उसके असबाब क्या हैं, और उस दीन से जो दीन फितरती दीन है उसकी कुछ बुनियादी तौज़ीहात और असबाब जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें एक तो अगियार के रवैये हैं, अगियार के रवैये कि जिन्होंने मजहब से लोगों को दूर किया है। अगियार के रवैयों को भी देखा जाए, उनमें भी 1 2 3 करके अगर देखा जाए तो मसीहियत बहुत बड़ा मजहब था जो बाकायदा दुनिया में 3 साढ़े 3 अरब की तादाद रखता था। उनके रवैयों को देखा, मगरब वालों ने देखा कि इनकी अपनी किताब, बुनियादी किताब वो महफूज नहीं है, उसके अंदर तहरीफ है, कौल फेल का तदाद है, एडिशन का इख्तलाफ है। एक नया एडिशन वो कुछ और कहता है, पुराना एडिशन कुछ और कहता है, ये अमेरिका का बलाग कुछ और कहता है, दूसरे अमेरिका का बलाग कुछ और कहता है, एक ईसाई कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है। तो इससे बाकायदा दीन बेदारी का रवैया मगरब में वजूद पजीर हुआ और वहां से आहिस्ता आहिस्ता पूरी तहरीकें चलना शुरू हो गई। और इसी तरह कलीसा और उनके दीनदार लोगों का जो मस्जिद और उनके कलीसा का और उनके दीनदारों का जो मजालिम थे, वो मजालिम भी ये सबब बने हैं लोगों को दीन से दूर करने के। भाई जो देने वाला हो, जो सर पे शफकत का हाथ रखने वाला हो, जिससे कोई उम्मीद हो, रहनुमा, लीडर, कायद और इसी तरह वडेरा बुजुर्ग, वो आपके सर पे शफकत का हाथ रखने की बजाय आपका गिरेबान पकड़ना शुरू कर दे, आपको जिंदगी और सहूलत देने की बजाय आपको कत्ल करना और आपके साथ इस्तेसाली रवैया रखना शुरू कर दे, तो कोई आपके करीब नहीं आएगा। तो ये उनका रवैया। और फिर इसी तरह उनकी दीन के मुतल्लिक जो तखरीब कारियां थी, एक तो यह है कि दीन को बदला, फिर दीनदारों को बदला। ये तीसरा रवैया जो उनसे दीन आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगियों से निकलता गया। वगरना कोई आदमी ये नारा नहीं लगाता था कि मेरा मजहब से ताल्लुक कोई नहीं है। हाँ, ये जंग तो हमने लड़ी है कि तू ईसाई है और मैं मुस्लिम हूं, तू यहूदी है और मैं इस्लाम पसंद हूं। ये जंग तो पूरी दुनिया में पहले से चलती आ रही है। फिर उसके बाद कुछ उनके ऐसे लोग जिन्होंने उनके दीन की, उनके मजहब की तस्वीर को बदल के रख दिया। जो असल तस्वीर थी उसको मसक कर दिया, बुलंद तस्वीर को छोटा कर दिया और अच्छी तस्वीर को अदना कर दिया। और फिर उसके बाद रहबानियत और खानकाएं बनानी शुरू कर दी। रहबानियत से लोग देखते थे कि ये इस सदी में 15वीं सदी में कौन आदमी जंगलों में जाके रहे। ये तो लोग नित नया माहौल चाहते हैं, हर रोज बल्ब बदलने की कोशिश करते हैं, हर रोज पंखा बदलने की कोशिश करते हैं, हर रोज गाड़ी बदलने की कोशिश करते हैं, हर रोज मोबाइल बदलने की कोशिश करते हैं। जिसके मजाज और तबीयत में जिद्दत ला दी गई है, तबीयत में नयापन रख दिया गया है, वो अब कदामत के साथ जंगलों में चले जाओ और कब्रों में चले जाओ और इसी तरह सहराओं में चले जाओ। इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। इस रवैये ने भी बड़ा खतरनाक माहौल पैदा किया। फिर उसके बाद मगफरत नामे इन्होंने किए, हदायत नामे दिए। हदायत वो है जो यहां से जारी हो, मगफरत वो है जो यहां से जारी हो। आप ये कर लें, जन्नत आपकी, ये ना करें, जन्नत आपकी। जन्नत को सिर्फ
मुख्तसर सिलेबस में रख दिया गया, लोगों को सर्टिफिकेट इन्होंने दिए, और फिर लोग जात पे लगे, कोई नस्ल पे लगे, कोई माल पे लगे, कहा मैं सैयद वादा हूं, मैं खान वादा हूं, मैं ये जात रखने वाला हूं, लिहाजा इस जात से जन्नत जुड़ी हुई है, इस रवैये से जन्नत जुड़ी हुई है, इस हुई है। उस मनसब को देखें, दीन को देखें, कौलो फेल का तदाद, लीमा तकूलून माला तफालून, इन लोगों ने बकायदा, और ये हमारे यहां भी है, कुफार के यहां ईसाइयत में भी ये था, हमारे यहां भी है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, सैयदे खतून जन्नत को क्या फरमाया था, क्या है फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप मेरी वजह से नहीं, अपने अमलों की वजह से जन्नत में जाएंगी। अपनी फूफी को क्या फरमाया था, क्या आपने मेरी वजह से नहीं, अपने अमल की वजह से जन्नत में जाना है। कोई मनसब, कोई जात पात, ये तो हिंदुआना रस्म और हिंदुआना तकसीम थी कि जो उनमें बरहमन और जात पात की तकसीम करके तू छोटा छोटू रह के जिंदगी बसर करेगा, बड़ा नहीं बन सकता, तू छोटू रह के बसर करेगा, तू ऊपर नहीं आ सकता। ये कैसी तकसीम है, लेकिन इस्लाम ने इस तकसीम को अमलन तोड़ा है। कहा सैयद बिलाल तू गुलाम जरूर है, तू छोटा जरूर है, गरीब जरूर है, लेकिन एक वक्त आएगा कि तेरे औसाफ से तुझे सिपा सलार बना दिया जाएगा। सैयदना सुहेब रूमी कहा कि ठीक है कि तुम मुहाजिर हो, रूम से आने वाले हो, रूम से आना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ओहदे में फर्क पड़े कि तू पाकिस्तानी है या तू फलां है। कहा कि तू एक वक्त आएगा कि अमाल के बाद तू बकायदा निजामत की अमारत को लेता हुआ नजर आएगा। इसी तरह सलमान फारसी, दीगर सफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू सफियान, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये बकायदा मिसालें हैं। इस्लाम से बढ़ के अच्छी मिसाल नहीं दे सकता। और अर्ज ये कर रहा हूं, वक्त कम होता है, बात ज्यादा अहम होती है और लंबी होती है, जिसको मुख्तसर तरीके से बयान करना होता है कि ये रवैया। फिर उसी तरह तफ्शीशी अदालतें, मैं इस मस्जिद में ऐसी अदालत लगा के बैठा हूं कि अपनों को जन्नती और अपने को हक और दूसरों को बातिल, अपनों को जो हकदार दूसरों को जालिम, ये रवैये वो हुए जिससे बकायदा मजहब से बिदारी आहिस्ता आहिस्ता होती गई। 3-4 सदियां लगी हैं इस नारे पे लाने के लिए कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं रसूल को नहीं मानता, मैं दीन को नहीं मानता। ये पहले दिन का रवैया नहीं है। फिर इसी तरह जगीरदारी निजाम, ये कलीसाई सिस्टम में बकायदा होता था। हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह इस तरह बैठते थे कि बता फर्क नहीं आता था महसूस। हमारे यहां तो आप यकीन करें कि हर आदमी के लिबास में बकायदा फर्क महसूस होता है, बकायदा आलिम के और आमी आदमी के लिबास में फर्क महसूस होता है, और उनके तमाम चीजों में फर्क महसूस होता है। रहने सहने के तरीकों में रसूल कायनात की जिंदगी को फॉलो करेंगे तो उससे मसाइल नहीं पैदा होंगे। फिर उसके बाद दीनी असबाब जो हमारे दीन में आए हैं, और इसी तरह कुछ माशी असबाब हैं, और इसी तरह कुछ सेकुलर लोगों की मेहनतें हैं कि जिसकी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता दीन बेदार होना शुरू हो गए। चंद एक के नाम लेके, हाँ उलमा का बहुत बड़ा ये काम है, ये मुझे और आपको बकायदा मिंबरों महराब पे भी और अपने मनसब पे भी बयान करना चाहिए कि दीन के पूरे कामों का खुलासा निकाला जाए, पूरे दीन का खुलासा निकाला जाए, पूरे दीन की जिम्मेदारियों का खुलासा निकाला जाए। तो 2 लफ्जों में बयान किए जा सकते हैं। एक लफ्ज क्या है, जो उलमा ने, जो उनका काम था कि मादी के विरसे का तहफ्फुज, ये बहुत बड़ा काम था कि मादी के विरसे का तहफ्फुज किया जाए। तो इन्होंने अल्लाह के फजल व करम से मादी के विरसे का तहफ्फुज किया है। इन्होंने शरीयत के अल्फाज को भी महफूज किया है, इन्होंने शरीयत के लहजात को भी महफूज किया है, इन्होंने शरीयत के तलफ्फुज को भी महफूज किया है, इन्होंने शरीयत के मानी को भी महफूज किया है, इन्होंने शरीयत की तफासीर को भी महफूज किया है। पूरी शरीयत को, हत्ता के गुन्ने मद, इसकी मिकदारों को भी इन्होंने महफूज किया है। कोई आदमी गुन्ना अपनी मर्जी से कुरान का नहीं कर सकता, मद जैसे चाहे लंबी करे ऐसे नहीं कर सकता, हर चीज को महफूज किया है। दीन का तहफ्फुज, मादी के विरसे का तहफ्फुज, ये सिर्फ उलमा ने किया है। दुनिया का कोई भी यूनिवर्सिटी का फर्द हो या ऊपर के इदारों का, सियासी मुआशी मईशत के इदारों का फर्द हो, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने ये महफूज किया। वो भी इकरार करते हैं, लेकिन दूसरा काम जो बड़ा अहम था कि मुस्तकबल के तकादों के मुताबिक दीन की तकमील, मुस्तकबल के तकादों के मुताबिक दीन की उस तरह तस्वीर
मुस्तकबिल के तकादों के मुताबिक दीन की तशरीह और तोज़ी, मुस्तकबिल के चैलेंजेस के मुताबिक दीन की तस्वीर इस तरह अवेदा करना, इसमें आके बहुत इदारे इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन सारे इदारों को मिलकर ये जदीद जितने मसाइल हैं उसके मुतल्लिक रहनुमाई करनी चाहिए थी। ये दीनदारों का पहला सबब। इसी तरह इनका दावा यह था कि दीन दायमी है, दीन आलमगीर है। हमने कहा दीन दायमी है, दीन आलमगीर है, लेकिन दीन की आलमगीर तर्जुमानी मिंबर और महराब से होनी चाहिए थी। आप इस्लाम की तस्वीर ऐसे देखते कि दुनिया का कोई निजाम भी, वो साइंसी निजाम हो, फलसफी निजाम हो, मंतकी निजाम हो, तरीकी निजाम हो, अकली निजाम हो, या इसके अलावा हवास पे खड़ा हो, गैबियात पे खड़ा हो, मफरूजात पे खड़ा हो, ख्वाहिशात पे खड़ा हो, हर एक को कंपैरिजन करते जाते तो आपको पता चलता जो दीन का बयानिया है वो किसी का बयानिया नहीं है। इसकी आलमगीर तर्जमानी होनी चाहिए थी। और इसी तरह एक तीसरा सवाल, इनको नरम मजाज होना चाहिए था, इनको मोहब्बतें बांटने वाला होना चाहिए था, इनको देने वाला होना चाहिए था। तासुब और तशद्दुद को मजहब से निकाल दो, दीनदारों से निकाल दो। यकीन करें इस एक बुनियाद की वजह से कितने लोग आपके करीब आ जाएंगे। आप जहां मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, मस्जिद के लिए आप काम करते हैं, मस्जिद की सोसाइटी के लिए भी सोचे। सिर्फ मस्जिद के मीनारे ना बनाओ, मस्जिद के गुंबद ना बनाओ, मस्जिद की दीवारें और मिंबर और महराब ना सजाओ। मस्जिद के बाहर भी अगर कोई काम होने वाला है उसके मुतल्लिक सोच विचार रखो। ना सोच विचार हो तो कम से कम उन लोगों के साथ मिलके, कंधे के साथ कंधा मिला के चलने की आवाज दे, हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ टूटे हुए भी जुड़ जाएंगे और आपका काम जोड़ना है। तासुब और तशद्दुद से काम नहीं चलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने कौल फेल में एक करके और तासुब तशद्दुद को छोड़ के कितने लोगों को खामोश दावत दी है। आप देखो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाना, तलवार लेके आ रहे, खामोश तबा बैठे हुए, सुकून से बैठे हुए, आने दो, जैसे आता आने दो, तलवार से आते तो आने दो, आने दो। आज वो आ नहीं रहे बल्कि लाया जा रहा है। अखलाक लाते हैं, तालीम लाती है, माहौल लाता है, निजाम लाता है, आपके रवैये लाते हैं। फरमाया अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े बादशाह की हैसियत से रहने वाले, कहा कि आज जो अबू सुफियान के घर में भी पनाह ले लेगा उसको भी पनाह है। एक जुमले ने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रवैये को बदल दिया कि चुदराहट इस्लाम छीनता नहीं है, चुदराहट का किबला बदलता है। ख्वाहिशात इस्लाम छीनता नहीं है, ख्वाहिशात का किबला दुरुस्त करता है, चुदराहट तो छीनी नहीं है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले भी चौधरी थे, पहले गली मोहल्ले चौक चरस्ते के चौधरी थे। इस्लाम ने उनको कैसरो किसरा, रोम, ईरान और पूरी दुनिया का चौधरी बना दिया। इस्लाम आपसे चुदराहट नहीं छीनता, इस्लाम आपकी ख्वाहिशात नहीं छीनता, इस्लाम आपके मजाज को दुरुस्त करता है। फिर उसके बाद आगे चल के देखें तो हमने जो इस्तेहसाली रवैया को छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी किसी के सच को तो सच कहना ही है, कभी कभी किसी के गलत को भी बर्दाश्त करना है, कभी कभी उसकी अच्छाई को तो लेना ही है, कभी कभी उसकी बुराई को भी बर्दाश्त करना है। कभी आप शहीदों से देख के उनसे अपनाइयत दोस्ती करें और कभी उसका मस्जिद में पेशाब करने को भी आप अच्छा समझे। कहा कोई बात नहीं, मस्जिद नबवी में कोई पेशाब कर देता है तो कोई बात नहीं, वो मरीज है तो डॉक्टर होने चाहिए, मरीज है तो इलाज होना चाहिए, मरीज है तो दवाई होनी चाहिए। मरीज को देख के आदमी डंडा पकड़ ले, मरीज को देख के और उसके एक्सीडेंट को देख के आदमी जलाली और जल्लादी तबीयत में आ जाए, ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा बिन उसाल का कैसे इलाज किया है, वो गाली देते थे, इन तक्तुल जाद अमीन, कत्ल करोगे तो कत्ल का बदला लेने वाले मौजूद है, और अगर अच्छा एहसान अच्छा बर्ताव करोगे तो वापस नहीं जाऊंगा, इधर से लौट आऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने 3 दिन उनके साथ कैसा रवैया किया। और फिर उससे बढ़ के आप यहां कोई बंदा वहाबी सुन्नी देवबंदी कहे, इससे अपने आप से बाहर हो जाते हैं। कोई बंदा हाथ ऊपर नीचे बांधे, इससे परेशान हो जाते हैं। कोई पांव मिलाए या ना मिलाए, इससे परेशान हो जाते हैं। आप प्यारे रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नबूवत देखें कि एक आदमी नबूवत का दावा कर रहा है, एक आदमी कुफर का दावा कर रहा है, और एक आदमी कत्ल की धमकियां दे रहा है, और एक आदमी तशद्दुद में इतना बढ़ गया कि इससे बड़ी दुनिया में तकलीफ कोई नहीं आई। ताइफ की वादी आपके सामने है, लोगों का कुफर आपके सामने है। एक बंदा वो है जो सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बकायदा शहीद कर रहा है। एक आदमी वो है जो बदर का एक मुजाहिद, बदर का सहाबी, कोई आम सहाबी नहीं,
بدر کے صحابی کو قتل کرے اور اس کے بعد رسول کائنات کے اخلاق کو دیکھ کے آپ کی خدمت میں پیش ہو کہ کوئی توبہ کا رستہ ہے، فرمایا توبہ کا رستہ ہے ہی تیرے لیے. ہم کہتے نا توبہ کا رستہ نہیں ہے، آپ کے پاس جو آپ کے اعمال حرکات ہیں وہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ پکا جہنمی. نہیں ایسی ویسی بات نہیں. اور اس کے بعد دلیل اور استدلال پہ لاؤ، لوگوں کے خالی اس طرح کی فضیلت فضا اور اہمیت کی باتوں سے نکل کر دلیل استدلال لاجک پہ لاؤ اور اسی سے آگے کام بنے گا. کام کیا ہے؟ پہلے سبجیکٹو پوائنٹ تھے، اب آبجیکٹو ہے. پہلے بچہ فزیکلی طریقے سے سیکھتا تھا، اب آن لائن سسٹم سے سیکھتا ہے. پہلے ایک کمرہ ایک ہی کولر ہوتا تھا، اب ہر بچے کا اپنا کمرہ اپنا اے سی ہے. پہلے ایک سائیکل تھی اور اسی طرح پورا خاندان تھا، اب ہر بچے کا اپنی گاڑی ہے. پہلے ایک کماتا تھا پورا خاندان کھاتا تھا، اب کیا ہے؟ ہر بندہ جب تک کمائے گا نہیں اس وقت تک کھائے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت جو زمانے کے حالات ہیں اس کو سمجھ کے تربیت کے حالات بھی وہ بناؤ، انشاءاللہ اس سے سیکھا جائے گا. اور ہمارے مغرب پسند نے جو ہمارے سامنے مسائل رکھ دیے، یہ سوالات صرف گنوا کے بعد ختم کرتا ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا معیشت اخلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے، معیشت بغیر اخلاق کی تعلیم کے چلنی چاہیے. آپ نے بتانا ہے کہ معیشت اخلاق کے بغیر نہیں چل سکتی. انہوں نے کہا کہ دین سیاست سے الگ چیز ہے، سیاست کو دین سے الگ کر کے چلنا چاہیے. آپ نے منبر و محراب سے بتانا ہے کہ سیاست دین کے بغیر بیکار ہے. انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا کہ معاشرے میں حیا کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے معاشرے کو حیا سے جوڑ کے چلانا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کی تقسیم کی کہ دین اور مذہب کی تقسیم ہے. آپ نے بتانا ہے کہ دین اور مذہب کا فلسفہ آپس میں اس طرح کا فرق نہیں ہے. اور آپ نے باقاعدہ ان چیزوں کو بتانا ہے کہ نقل اور عقل آپس میں مل کے چلتی ہے. عقل لہدہ، نقل لہدہ، قرآن سنت لہدہ، معاشرہ لہدہ، ایسی ویسی بات نہیں ہے. آپ نے بتانا ہے کہ دعوت قدیم بھی تھی، دعوت جدید بھی ہے، دعوت کے ساتھ تعلیم قدیم بھی تھی، تعلیم جدید بھی ہے. انشاءاللہ العزیز اگر اس پیٹرن پہ آپ کام کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا نظام چھوٹا سے آپ چھوٹے سے بند کمرے میں ہو کے پوری دنیا ڈسکس کر رہے ہوں گے، اور اسی میں آپ کی بھی فلاح ہے، اسلام کی بھی کامیابی ہے، اسی میں آپ کی اصلاح ہے، فلاح ہے، دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین بیداری کے جو اسباب ہیں انہیں سمجھ کر چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی ولی من اللہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.